So let's begin by reading the Word of God for us for tonight. तो आइए शुरुआत करते हैं परमेश्वर के वचन से। हम पढ़ेंगे आज का वचन। I will read from 1 Peter chapter 5 and verse 8. और हम पढ़ रहे हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। And if, just so that you know, if at any point there's any problem with the audio or the video, just please quickly post so somebody who's on our team and watching will let us know and we'll try to fix it. और वीडियो या ऑडियो में अगर आपको कोई भी खराबी या तकनीकी खराबी नजर आए तो आप जल्द जाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। हमारे घर के सदस्य जो देख रहे हैं वो हमें बता सकेंगे। So I'm reading from 1 Peter chapter 5 and verse 8. तो हम पढ़ रहे हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन। Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walks about, seeking whom he may devour. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ हिंदी में। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। I'm going to ask you to listen a little carefully once again as I read this verse. मैं आज चाहता हूं कि आप इस वचन को ध्यान से सुने जैसे हम वापस इसे पढ़ेंगे। It's important that we identify with this verse today. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन के साथ इसकी समझ लें। Be sober सचेत रहें and be vigilant, और जागते रहें, because your adversary, क्योंकि आपका दुश्मन, not your friend, आपका दोस्त नहीं, not somebody that can be helpful sometimes, ऐसा नहीं कि जो कोई आपकी कभी मदद कर सके, not an acquaintance, like he may not be a friend, may not be family, but he's just an acquaintance, you know him. कोई आपका जान पहचान वाला, कोई आपका परिवार का सदस्य नहीं, कोई जानने वाला, That's not him. वो नहीं है। He is your adversary. वो आपका शत्रु है। Satan is your adversary. शैतान आपका विरोधी है, आपका शत्रु है। This verse is what I believe a clarifying verse about who Satan is for us, the church, and for you, the child of God. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये साबित करता है कि शैतान असलियत में कौन है कलीसिया के लिए और हर एक परमेश्वर के बच्चे के लिए। Now, let's just quickly jump to the verse that we read last week. और पिछले हफ्ते हमने जो वचन पढ़ा था, आइए उसकी तरफ चलते हैं। We're going to Galatians chapter 5. हम पढ़ रहे हैं गलतियों की किताब 5वां अध्याय। And I am reading from verse 19. और हम पढ़ रहे हैं 19वें वचन से। Now these are the works of the flesh which are manifest. I'll quickly read it. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, and revelings. और जल्द से हम आपके लिए पढ़ेंगे 19वें वचन से गलतियों की किताब 5वां अध्याय। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। Now we started to study about this last week. और इसके बारे में हमने कुछ शिक्षा ली थी पिछले हफ्ते। And this exhaustive list of 17 fruit of the flesh, works of the flesh. और ये 17 जो देह के कार्य हैं बहुत ही लंबी चौड़ी यादी है जो They're pretty intense. और ये काफी गहरी यादी है। I believe that these 17 identify with what we believe is human nature. और ये जो 17 देह की जो चीजें हैं या कार्य हैं ये हम मानते हैं कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हम उसका हिस्सा इसको मानते हैं। We accept these 17 as part of being human.
और ये जो 17 अध्याय के फल हैं, हम अपने मन में इनको समझ जाते हैं कि हमारी रोजमर्रा की ये सामान्य मनुष्य की चीजें हैं। This is how we try to justify to ourselves that we are not at fault. और ये चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, हमारी तो कोई गलती नहीं है। What we're trying to do is we're saying that this is how we are. और हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम ये साबित करते हैं हम तो ऐसे ही हैं। What we're doing is we are trying to say this is how we've been made. This is how we were born. And so if this is how we are, then we are not necessarily to blame. और हम कहने की क्या कोशिश करते हैं, हम तो ऐसे ही पैदा हुए हैं, हम तो ऐसे ही बनाए गए हैं, और अगर हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें हो रही तो हमारी गलती नहीं है। Are you with me, church? क्या आप हमारे साथ हैं? I tell you, this is so important. Please focus on this word because this will speak to you. और हम कहते हैं कि ये वचन आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी से बात करेगा, तो ध्यान से सुनिए। Satan has made us to believe through all the different happenings in this world. Satan has made us to believe that these 17 fruit of the flesh are normal human actions or emotions. और शैतान ने ऐसा क्या किया है कि उसने पूरी दुनिया को या मनुष्य जाति को ये कहने पर या समझने पर मजबूर किया है, उनको इनके मन में ऐसा ख्याल डाल दिया है कि ये जो 17 अध्याय के कार्य हैं, ये आपकी रोजमर्रा के सामान्य मनुष्य की जिंदगी का हिस्सा हैं। And what Satan has also done is that the 9 fruit of the Spirit, he has made us to think that is abnormal. और शैतान ने हमें ये भी सोचने में लगाया है कि जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, 9 फल हैं, वो बहुत ही अलग चीज है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। That is not our nature. वो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी नहीं है, That is not being human. और वो मनुष्य जाति का हिस्सा नहीं है। And so what happens is when somebody displays any one of these 9 fruit of the Spirit, और होता क्या है कि अगर कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के वो फल अगर दर्शाता है, for example, if somebody displays faith, और मान लीजिए कोई अगर विश्वास दिखाता है, if somebody has faith during a hard time, और किसी मुश्किल समय अगर कोई विश्वास दिखाता है, we will judge them and we will say, stop being so fake, man. Stop being so unreal. Stop being so artificial. You have to be real in these situations. और अगर ऐसे मुश्किल समय अगर कोई इंसान विश्वास दिखाता है, हम उनकी तरफ देखकर कहते हैं कि तुम ढोंगीपना बंद करो, ये नकाब निकालो और सच्चाई का सामना करो। And what we refer to is to one of the 17. और हम क्या करते हैं, हमारी उंगली उस तरफ करते हैं जो देह के कार्य हैं। I tell you, this is such a startling truth. और ये बहुत ही अचंभित करने वाला सच है। So this is what Satan does. तो शैतान ये करता है Every day, from the time we wake up till the time we sleep. और हर दिन हमारे उठने के बाद और हमारे सोने के पहले, By what we watch on television. जो कुछ हम टेलीविजन पर देखते हैं, Whatever we watch on the movies. हम पिक्चरों में जो भी देखते हैं, Whatever music we listen to. जिस प्रकार का हम संगीत सुनते हैं, The people that we meet. जिस प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं, The hoardings that we watch on the road. और अगर हम सड़क पे चलते चलते अगर बड़े बोर्ड हम पढ़ते हैं, वो From newspapers and magazines. अखबार और मैगजीन को भी लेकर, From our phone. हमारे फोन पर From advertisements. विज्ञापन देखकर, Literally from multiple sources all day, Satan is trying to put in one of these 17 so that we will display it. और शैतान क्या करता है, हर रोज हमारी जिंदगी में अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से कोशिश करता है कि ये 17 देह के जो हमारे शरीर के फल हैं हमारी जिंदगी में डाले। And he is trying to make us, to try to convince us, it's okay, it's normal, this is being human, this is you. और ये आपको बार बार समझाने की शैतान कोशिश करता है, अरे कोई बुरी बात नहीं है अगर आप में शरीर के फल हैं, ये तो नॉर्मल है, इंसान है, सामान्य इंसान के फल हैं। I'm not killing anyone. मैं किसी को मार तो नहीं रहा हूँ, I'm just feeling this. मैं सिर्फ ये महसूस कर रहा हूँ। It's okay to feel that I want to kill somebody. और ये महसूस करना अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं कि आप किसी को मारना चाहते हैं।
You're not actually doing it, आप कर तो नहीं रहे हो, but you're just feeling it. आपको सिर्फ ऐसा ख्याल आ रहा है, I hate this person so much that if I could, I would kill them. मैं ऐसा इंसान से इतनी नफरत करता हूं, अगर मैं चाहूं तो मैं उसे मार सकता हूं। This is the real truth. ये सच्चाई है। But this is what the Bible considers as wrath. और ये लेकिन पवित्र शास्त्र इस चीज के, इस ख्याल के बारे में क्या कहता है? ये तो गुस्सा है। This wrath is not just a normal hatred or anger, but it is the effect of wanting to kill somebody, but you just have not been able to physically do it. और पवित्र शास्त्र जिस गुस्से के बारे में बात करता है, सामान्य गुस्सा या नफरत नहीं है। ये गुस्सा उस हद तक पहुंच जाता है कि आप किसी का कत्ल करना चाहते हो। And these 17 are the manifestations of Satan. और ये 17 जो फल हैं देह के, ये शैतान के कार्य के हैं। And so going back to 1 Peter, the Bible is telling us very, very clearly that Satan is our enemy. और पवित्र शास्त्र में अगर वापस हम उस वचन को पढ़ें जो पतरस की किताब से हमने पढ़ा, कि पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है कि शैतान हमारा विरोधी है। Satan is your enemy. शैतान हमारा विरोधी है। Identify Satan as your enemy. शैतान को आप अपना विरोधी आज से मान लें। When you're watching any one of these 17 manifesting in your life, identify it being a plant of the enemy. और अगर ये 17 देह के फल में से कोई भी फल अगर आपकी जिंदगी में दिखता है, तो आप समझ जाइए कि शैतान का कार्य शुरू हो चुका है। Like, let me tell you exactly how this is working. हम आपको बताते हैं कैसे होता है। When you have wrath manifesting in you, और जब आपके अंदर गुस्सा इतना आग बबूला होता है, when you have that much of an anger that you cannot forgive somebody even though the sun has set and the sun has risen, और अगर आपके अंदर इतना गुस्सा हो जाता है, आप किसी को माफ नहीं कर सकते, सूरज डूब भी गया है और सूरज उग भी गया है। the Bible gives us enough of time that before the sun rises the next day that we're able to deal with situations and forgive somebody. और पवित्र शास्त्र हमें बहुत समय देता है कि सूरज डूबने से पहले अपने गुस्से को थूक दो, अपनी नफरत को थूक दो, लेकिन हम नहीं करते। The Bible allows us to go beyond that wrath and that hatred. पवित्र शास्त्र हमें मौका देता है कि उस गुस्से को छोड़ के हम उसके आगे चलें। But when that still persists in you, लेकिन वो फिर भी आपके अंदर रहता है। example, if that wrath is still in you, अगर वो गुस्सा आपके अंदर भी रहे, उदाहरण के तौर पर, that is the enemy manifesting in you. वो शैतान आपकी जिंदगी में अपने आप को दर्शा रहा है। Again, I'm not talking just about wrath. I'm saying this could be any one of these 17. मैं सिर्फ गुस्से की ही बात नहीं कर रहा हूं, ये 17 जो देह के फल हैं, उन सब में से किसी का भी एक फल हो सकता है। But when they're operating, जब ये कार्य कर रहे हैं, when they're working in you, जब ये 17 में से आपके अंदर कोई कार्य कर रहा है, this is part of the enemy in you. ये शैतान की योजना का हिस्सा है आप में। This is not you. ये आप नहीं हैं। God has not created us for these 17. परमेश्वर ने हमें इन 17 देह के फलों के लिए नहीं बनाया है। God has designed us for the 9. परमेश्वर ने हमने 9 पवित्र आत्मा के फलों के लिए बनाया। God has designed you for the 9. परमेश्वर ने आपको वो 9 पवित्र आत्मा के फलों के लिए बनाया But है। Satan has convinced you that you are for the 17. लेकिन शैतान ने आपको ये मुश्किल में डाल दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप वो 17 देह के फलों के लिए बने हैं। Are you with me, church? क्या आप हमारे साथ हैं कलीसिया? The adversary, your enemy, Satan, is out and about. और आपका विरोधी, आपका शत्रु शैतान आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। And he is seeking whom he may devour. और ये वो खोज में है कि किसको फाड़ खाए। He is not seeking you to give you good things. वो इसलिए नहीं आपको ढूंढ रहा है कि आपको कोई अच्छी चीज दे। He is not seeking you to love you. वो आपको ढूंढ नहीं रहा है कि आपको वो प्यार दे सके। According to what we just read, he is seeking whom he may devour. और जैसा हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है, वो ढूंढ रहा है कि किसको वो फाड़ खाए। Church, कलीसिया, if you are on the right path, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, if you are serving God, अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं,
If you hear the voice of God, अगर आप परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, if you are a child of God in ministry, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं सेविकाओं में, if you are in the praise and worship team, अगर आप भक्ति आराधना के गुट में हैं, if you are in the gospel or the evangelical team, अगर आप सुसमाचार देने वाले गुट में हैं, if you are in any part of the evangelism that Jesus has authorized us to do, अगर आप किसी भी चीज का हिस्सा है, किसी भी गुट का हिस्सा है जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, if you are an active child of God in His service, अगर आप परमेश्वर की सेविकाओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले सदस्य हैं, Satan is looking out to destroy you. शैतान ढूंढ रहा है कि आपको फाड़ खाए। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। And so the moment the one who is serving God, और जब आप जो परमेश्वर की सेवा कर रहा है, the moment you who are God's child, who should be operating in the 9, the moment any of the 17 are seen in you, not just superficially, not just human emotion, but the moment they are taking root in you, और जब आपकी जिंदगी में जब आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में आपको लगे कि आपकी जिंदगी में वो 17 देह के फलों में से कोई चीज दिख रही है, दर्शा रही है, तब it means that Satan is now on the lookout for you. इसका मतलब ये है कि शैतान अभी आपकी खोज में है। It means he is saying, hey, this is hypocrisy. वो कहता है हाँ ये तो ढोंगीपन है, Because you're saying this is your child. आप कह रहे हैं परमेश्वर का, ये परमेश्वर का बच्चा है। But if this is your child, how come not just one, but so many of the 17 are operating in this person? और अगर ये परमेश्वर का बच्चा है तो कैसे देह के फल इसकी जिंदगी में दर्शाए जा रहे हैं? I have the right to do what I want. तो शैतान कहता है कि उसके पास हक है आपको छूने का, And I can attack. और वो हमला कर सकता है। So church, you got to be careful. तो कलीसिया आपको सचेत रहना है। We Christians are so used to blaming God और हम क्रिस्ती लोग हर बार परमेश्वर को दोषी ठहराने में बहुत निपुण हैं। when we are in the church and if anything happens to us or even comes close to us, we say, why God? और जब भी कुछ हमारी जिंदगी में अलग होता है, जो अजीब होता है, तो हम तैयार रहते हैं कि परमेश्वर को पूछने के लिए कि क्यों परमेश्वर। When we commit sin and we are at fault and the protection of God is lifted from us, we say, why God? और जब हम पाप करते हैं और परमेश्वर की सुरक्षा हमारी जिंदगी से चली जाती है, हम परमेश्वर की तरफ देखकर कहते हैं क्यों परमेश्वर। No, God is asking you why. परमेश्वर आज आपसे पूछ रहा है क्यों। So remember this. तो याद रखिए, What we said just now is word for your life. और जो हमने आज कहा है ये परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी के लिए है। Satan is your enemy. शैतान आपका शत्रु है, विरोधी है। These 17 are from him. ये 17 देह के फल शैतान की तरफ से हैं। So when these begin to operate, look at it as being your enemy. और जब ये 17 देह के फल आपकी जिंदगी के नजदीक आते हैं, आपको दिखे तो ध्यान रखें कि शैतान कार्य पर है। So you need, the moment any of these 17 start to operate in you, you need to have a spiritual allergy and start to throw out what is not of God inside of you. और जैसे आपको दिखाई दे कि ये 17 देह के फलों में से कोई चीज आपकी जिंदगी में आ रहा है, तो आपको एक आत्मिक एलर्जी टाइप की होनी चाहिए, ताकि हमेशा आप उसी वक्त आप इसको बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। That's the only way that you are going to be able to save yourself. और यही एक तरीका कि आप अपने आप को बचा पाएंगे। Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया? Let us open to Mark chapter 4 and verse 39. आइए हम मरकुस की पुस्तक को खोलते हैं, 4 अध्याय और 39वां वचन। Mark chapter 4, and I am going to start reading from 37। yeah, let's read from 36. और हम 36वें वचन से पढ़ रहे हैं आपके लिए, मरकुस 4:36 से आगे। And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there was also with him
other little ships. And there rose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it now was full. And he was in the back part of the ship, asleep on a pillow. I like the detail. And they awoke him, and they said unto him, Master, don't you care that we are going to perish? And he arose, and he rebuked the wind. And he said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Verse 41. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea, they obey him? हम आपके लिए पढ़ रहे हैं मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 36वें वचन से आगे। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? We know this beautiful story. हमें इस खूबसूरत कहानी का पता है। Now watch this story speak to you. और ये कहानी अभी आपसे बात करेगी। The advertisement of Satan और शैतान का विज्ञापन is death, sickness, pain, destruction and torment. और उसका विज्ञापन ये है कि जहाँ पर मौत हो, तकलीफ हो और तकलीफ से भरी जिंदगी हो। The advertisement of Satan is real. और शैतान का विज्ञापन सच्चा है। The coronavirus is real. और कोरोना वायरस असली है। The attacks of Satan are real. और शैतान के हमले सच्चे हैं। But those who belong to God, लेकिन जो परमेश्वर के हैं, they stay in the protection of God. वो परमेश्वर की सुरक्षा में बने रहते हैं। Those who are in God's protection, और जो परमेश्वर की सुरक्षा में हैं, they are safe within the symbolic Noah's ark. और वो परमेश्वर की सुरक्षा में रहते हैं, जैसे नूह का आर्क बना हुआ था उसमें जैसे बनकर रहते हैं। That even though on the outside there is death and destruction, और चाहे दुनिया में कितना भी मौत हो या विनाश हो, that there is safety within God's protection. लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा में एक अलग ही तरीके की सुरक्षा है। Let me read to you what the Bible says that Jesus was doing. हम आपको पढ़कर बताते हैं कि यीशु क्या कर रहे थे पवित्र शास्त्र में। I've always asked myself this question. मैंने हमेशा ये सवाल अपने आप से किया है, Why was Jesus sleeping? क्यों यीशु मसीह सो रहा था? Everything that the Bible documents that Jesus did is symbolic. और जो कुछ पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में या उसके कार्य के बारे में लिखा है, उसका एक खास मतलब है। So everything that's documented is symbolic. It is required to teach us something. और जो कुछ यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, वो एक चिन्ह है हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। So the storm arose. तो ये तूफान आया। The storm arose so that there can be fear. और इतना बड़ा तूफान आया ताकि डर पैदा हो।
The storm arose so that everybody who is in that ship should feel that the storm is going to destroy them. और तूफान इतना बढ़ गया और इतना जोर से आया कि जो कुछ भी उस नाव में बैठा था वो डर जाए और ये मान ले कि ये आज तो वो डूबने वाले हैं। So Satan was playing his advertisement. तो शैतान अपना विज्ञापन चला रहा था। I'm going to read for you from Psalms chapter 4 and verse 8. हम आपके लिए भजन संहिता 4:8 पढ़ रहे हैं। It's beautiful. बहुत ही खूबसूरत है। Psalms 4:8. भजन संहिता 4:8। I will both lay me down in peace and sleep, for you, O Lord, makes me dwell in safety. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। On the outside, everything that was going on और बाहर जो कुछ भी हो रहा था was designed by Satan to cause fear. और वो शैतान की योजना थी ताकि वो सब में डर पैदा करे। And it was working और वो चल रहा था because everybody who was in the ship was full of unfaith. और शैतान की योजना के हिसाब से जितने भी लोग वो नाव में थे वो तो डर ही रहे थे। They were afraid because they were watching it. कि वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो सब देख रहे थे, उनकी नजरों के सामने ये हो रहा था। They were afraid because they were awake to see what was going on. वो इसलिए डर रहे थे कि उनकी आंखों के सामने ये हो रहा था और वो जाग कर ये देख रहे थे क्या हो रहा है। They were awake and they were focusing on the storm. वो जागे हुए थे और वो देख रहे थे और जो तूफान है उस पर ध्यान दे रहे थे। And so the effect of what they were watching was giving them fear and unfaith. और जो कुछ भी वो अपनी खुली आंखों से देख रहे थे उसका असर उनकी जिंदगी में अविश्वास और डर लेकर आ रहा था। Not only that, but they were actually also accusing Jesus. वही नहीं, वो तो यीशु की निंदा भी करना शुरू कर दी। Like, why are you sleeping? कि आप क्यों सो रहे हो? Like, do you want us to die? क्या आप चाहते हैं हम मर जाएं? So they were believing Jesus wanted them to die. और वो ये विश्वास करने लगे यीशु मसीह उनको तो मरवाने के लिए लाया है। But Jesus realized God's word in Psalms 4:8. लेकिन यीशु मसीह को पता था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है भजन संहिता 4:8 में। He knew उसे पता था that if he disconnects from the storm, कि अगर वो तूफान के बारे में ना सोचें, if he would not focus on the storm, अगर वो तूफान के ऊपर ध्यान ना दें, but he would rest, वो ध्यान शांत रहें, that he would believe and he would receive God's word, तो वो विश्वास करेंगे और परमेश्वर का वचन पाएंगे, that he would believe and trust that the safety of God is in him resting. तो वो ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर की सुरक्षा यही है कि वो शांत रहें। So because he was actually living Psalms 4:8, where the Bible says that God gives us great beautiful sleep because he makes us to dwell in safety, in his protection. So he was having a nap because he would rather trust in God's safety than to believe in the storm. तो यीशु मसीह इसी वचन का पालन कर रहे थे कि उन्हें पता था कि परमेश्वर की सुरक्षा में, और ये वचन में लिखा है कि परमेश्वर की सुरक्षा में एक खूबसूरत नींद उनको आ रही थी। यीशु मसीह को पता है कि उसकी परमेश्वर की सुरक्षा में उसमें उनको रहना है और शैतान जो तूफान के रूप में विज्ञापन दे रहा था उस पर उनको ध्यान नहीं देना है। Remember this, church. इसे याद रखें कलीसिया। If you can understand the person of Jesus, is Jesus was sent down on this earth in human form. अगर आप यीशु मसीह का व्यक्तित्व समझ पाएं, जो यीशु मसीह को इस मनुष्य के रूप में धरती पर जो भेजा गया था, You know, one of the reasons that I really love reading about Jesus is because his example is supposed to be for us to follow.
और सबसे महत्वपूर्ण बात है यीशु मसीह के जो हम जिंदगी के बारे में पढ़ें और उनका अगर उदाहरण लें तो उनका उदाहरण हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण Is है। because we are always doubting God and we are always living in unfaith, and then we say, God, how is it possible to do it? क्योंकि हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम परमेश्वर पे हमेशा शक करते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखते और हम परमेश्वर को कोसते हैं और कहते हैं कि कैसे करें परमेश्वर। We're always saying, you're up there, you're perfect, you are all powerful, I'm here, I'm weak, I'm in the flesh, so I'm committing mistakes. तो आप हमेशा कहते हैं परमेश्वर तू तो स्वर्ग में बैठा है, तू तो निपुण है, तुझे कोई तकलीफ नहीं, हम दुनिया में हैं, हमारे पास मुश्किल है, हम क्या करें? You don't understand. आप नहीं समझते You परमेश्वर। don't understand how hard it is to be human. आप उनको परमेश्वर को कोसते हैं और आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि मनुष्य रहना कितना मुश्किल होता है। Arey, try to live one day. अरे एक दिन जी के तो देखो। God, परमेश्वर forget one day. Try to live like me. Try to walk in my shoes for 1 minute. एक दिन तो छोड़िए, आप 1 मिनट मेरी जिंदगी जी के देखो परमेश्वर, And you will understand what it is to be human. तो आप जानेंगे कि मनुष्य जात होना क्या होता है। So God said, परमेश्वर कहता है okay, ठीक है, I'm coming down. मैं आ रहा हूं नीचे। And not 1 minute, 1 मिनट नहीं, not 1 day, एक दिन नहीं, 33 years. मैं 33 साल आऊंगा। Here you go. अभी देखो। So Jesus came, तो यीशु मसीह आया, walked this earth, इस धरती पर चला lived as a human, और मनुष्य बनकर जिया and still stood strong in faith. और फिर भी मनुष्य होने के बावजूद वो विश्वास में बने रहे, Stood in the face of Satan. और शैतान के मुंह के सामने विश्वास में बने रहे, Stood in the face of death. और मौत के सामने खड़े रहे, Stood in the face of temptation. और मोह के सामने खड़े रहे And came out victorious. और बाहर एक विजेता के तौर पर बाहर आए। So mankind no more can have any excuse to say, oh, it's hard to be human. He lived the life not of an angel, not of God on this earth, but he lived in the flesh to show you it is possible to have faith even though you are human. तो मनुष्य जाति कोई कारण नहीं बना सकती, कोई बहाना नहीं ढूंढ सकती कि परमेश्वर मनुष्य बनना बहुत मुश्किल है, मनुष्य रहना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बने और मनुष्य बनने के बावजूद हर चीज उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक की और ये दिखाया कि ये मुश्किल नहीं कि विश्वास रखना आसान है। The problem is that we are believing the advertisement of Satan. और तकलीफ तो ये है कि हम शैतान का विज्ञापन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। Let me tell you something. मैं आपको एक चीज कहता हूं, Being a child of God, परमेश्वर का बच्चा होने के नाते if you do not operate in faith, अगर आप विश्वास में ना चलें then you are useless. तो आप बेकार हैं। Not just useless to the kingdom of God, but useless to yourself. आप सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए बेकार नहीं, अपनी जिंदगी के लिए भी बेकार हैं। Once I was praying, एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था and I was praying with no faith. और मैं बिना विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था। I was praying a prayer that was a formality. मैं प्रार्थना जिस रूटीन के जैसे प्रार्थना कर रहा था। I was praying without believing in the power of that prayer. मैं प्रार्थना कर तो रहा था लेकिन उसमें जो सामर्थ्य है उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। I was praying just because I had to pray. I was not praying because I wanted a result from the prayer. और मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा था कि मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी थी, मैं प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे उसका कोई जवाब चाहिए। And as I was praying, और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, God stopped me. परमेश्वर ने मुझे रुकाया And he said, stop. और उसने कहा रुक जा। He said, why are you even praying? उसने कहा कि क्यों प्रार्थना कर रहा है तू? He said, a prayer of unfaith is not a prayer. उसने ये कहा कि एक अविश्वास की प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। And God told me, और परमेश्वर ने कहा restart that prayer. फिर से प्रार्थना की शुरुआत कर And this time, pray like you believe in an answer. और इस बार ऐसे प्रार्थना कर कि तू विश्वास करता है कि उत्तर मिलेगा। What is faith? विश्वास क्या है? Faith is evidence. और एक जो विश्वास है एक प्रमाण है। The Bible tells us faith is the evidence of things you have not seen.
और पवित्र शास्त्र हमें कहता है कि जो हमारा विश्वास है एक प्रमाण है उन चीजों का जो हमने नहीं देखी। So if you do not have a healing, अगर आपके पास चंगाई नहीं है, if you do not have a miracle, अगर आपके पास कोई चमत्कार नहीं है, but when you pray in faith, you are establishing that you believe in the miracle, that you believe in the healing, that you believe in the answer. तो जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप अपने मन को बता रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं उस जवाब में जो चंगाई का आने वाला है, जो आपकी जिंदगी में आशीष लेकर आने वाला है। And so I said, Lord, forgive me. तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे माफ करें। I restarted the prayer मैंने वो प्रार्थना फिर से शुरू की and the answer came. और उसका जवाब आया। I tell you, church, today if God's children कलीसिया मैं आपसे कहता हूं, अगर आज परमेश्वर के बच्चे would start to operate in faith, अगर वो विश्वास में चलने लगे, then they would truly receive the answer of their prayers. तो अगर हम विश्वास में चलें तो हम सच्चाई में अपनी प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। But look at your life today. लेकिन हम अपनी जिंदगी की ओर देखें। The moment the sickness comes, जब हमारी जिंदगी में कोई बीमारी आती है, you are preparing for burial. तो आप तो दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। Yep, that's you. ये आप हैं। The moment a problem arises, जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, you say to yourself, khatam. आप तो अपने मन को कहते चलो अभी तो खत्म हो गया। The moment the problem begins, जब कोई मुश्किल शुरू होती है, array, that is a advertisement. अरे वो तो एक शैतान का विज्ञापन है। But I'm seeing it. लेकिन मुझे तो दिख रहा है, I see it on the outside. What to do? मेरे सामने सब कुछ हो रहा है, मैं क्या करूं? Array, it is an advertisement. अरे ये तो एक विज्ञापन है, But it looks real. लेकिन ये तो सच्चे में दिख रहा है। Yes, it is all around you. हाँ, ये आपके आजू बाजू है। Yes, it is rocking the boat. हाँ, ये आपकी नाव को हिलडोल रहा है। Yes, it is loud and scary. हाँ, ये डरावना है, ऊंचा है। But it is an advertisement of Satan. लेकिन ये तो एक शैतान का विज्ञापन है। And you, as the child of God, need to believe in the protection that exists for God's children when you are in His safety. और आप परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपको विश्वास करना है परमेश्वर की सुरक्षा में जिसमें आप बने हुए हैं। And that's why Jesus could stand up and He could say those words, Peace, be still. और इसीलिए इस विश्वास की वजह से यीशु मसीह उस समय वो समुद्र में खड़े हुए और उन्होंने कहा शांत हो जा, थम जा। I hope you've understood now why Jesus was sleeping. मैं आशा करता हूं कि अभी आपको समझ में आया होगा कि क्यों यीशु नाव में सो रहे थे। Let me put another question that I had in my mind. और मेरे मन में और एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं। I asked myself this question. मैंने अपने आप से एक सवाल किया, What should have the disciples been doing? तो उस समय चेलों को क्या करना चाहिए था? They should have been praying. क्या वो भी प्रार्थना में बने होने चाहिए थे? They should have been casting out the demon. क्या वो शैतान को बाहर निकालने के लिए बात कर रहे होंगे? No. नहीं, They should have followed what Jesus was doing. उन्होंने सिर्फ उसके पीछे चलना था जो यीशु कर रहे थे। They should have actually been saying, the storm is here, what to do? What is Jesus doing? He's napping. Okay guys, time to nap. और उन्हें ये करना चाहिए था कि जो उन्होंने देखा अरे इधर तो तूफान चल रहा है तो यीशु क्या करे, सो रहे, चलो हम भी सो जाते हैं। That's what they should have done. और चेलों को भी वही करना था। If they would have just followed what Jesus was doing, that they would have napped in the face of death and the devil and destruction. और अगर वो चेले जो हैं यीशु मसीह जो कर रहे थे अगर वही करते तो सो जाते, तो उनको परमेश्वर की सुरक्षा में शैतान के जो विज्ञापन है, जो तूफान का विज्ञापन, उसके मुंह के सामने वो परमेश्वर की सुरक्षा में सोते थे। If they would have practiced what Psalms 4:8 said, अगर उन्होंने ये इस चीज का कार्य अपनी जिंदगी में किया होता जो भजन संहिता 4:8 में लिखा है, the same thing that Jesus was doing, और जो चीज यीशु मसीह कर रहे थे, that storm would have passed. वो तूफान तो चला जाता था Satan would have been frustrated. और शैतान अपने दांत पीसना रहता था How come I cannot bring fear into these people? कि कैसे मैं इनके दिल में मैं डर नहीं डाल पा रहा हूं, Because they trust in the protection of the Lord. क्योंकि ये परमेश्वर की सुरक्षा में विश्वास करते हैं, Because they trust that they belong
to the Almighty God. क्योंकि ये विश्वास करते हैं ये परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हैं। Let's just quickly open to 2 Kings in chapter 6. आइए दूसरा राजा And for those of you who might not be sure, that is in the Old Testament. 2 Kings chapter 6. दूसरा राजा 6वां अध्याय Chapter 6 and verse 7. Okay, let me go back. Let's read 15, 16, 17. और दूसरा राजा 6वां अध्याय 15, 16, 17 हम वचन पढ़ रहे हैं। And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, a host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, alas, ay, 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 ay. My master, what should we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha, the man of God, prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. हम आपके लिए हिंदी में पढ़ रहे हैं। दूसरा राजा 6:15 से आगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहला हुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों के समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसे सेवक ने उससे कहा, हाय हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने, परमेश्वर का व्यक्ति ने, ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब ये देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा की चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। Powerful verse. बहुत ही शक्तिशाली वचन। Powerful verse. और बहुत ही सामर्थ्यशाली वचन। I tell you this, church, कलीसिया मैं आपसे कहता हूँ, this is what Jesus saw. यही चीज यीशु मसीह ने देखी। Jesus saw यीशु ने देखा, माफ कीजिएगा, that all around the ship, कि नाव के चारों ओर he saw what Elisha could see. और यीशु मसीह ने वो देखा जो एलीशा ने यहाँ पर देखा। He saw what the servant's eyes were open to see. और यीशु ने वो देखा जो सेवक की आंखें जब खुल गई उसने देखा। He saw the mighty protection of God's fiery chariots all around. और उसने देखा परमेश्वर की महान सुरक्षा वो अग्निमय रथों के चारों ओर जो उसके थी। He saw that the protection of God was bigger than the advertisement of Satan. और यीशु मसीह ने देखा कि परमेश्वर की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा अधिक थी शैतान के उस तूफानी विज्ञापन से। It was more. वो ज्यादा थी, It was bigger. बड़ी थी, It was more powerful. और ज्यादा सामर्थ्यशाली थी। So he could take a nap इसलिए यीशु मसीह सो रहे थे, because he knew that the protection of the Almighty God was working on behalf of him. So he said, it's time for me to take a nap. क्योंकि यीशु मसीह ये जानते थे कि परमेश्वर की महान बड़ी सुरक्षा उनके चारों ओर है, तो इसलिए उन्होंने कहा तो मैं तो सो जाता हूँ। Who do you want to believe? आप किस पर विश्वास करना चाहते हैं? Would you like to believe the power of Satan?
क्या आप शैतान की ताकत पर विश्वास करना चाहते हैं, or would you like to believe in the power of God? या आप परमेश्वर की ताकत में विश्वास करना चाहते हैं? Would you like to believe in the storm, या क्या आप तूफान में विश्वास करना चाहते हैं, or would you like to believe in the chariots of fire around you? या आप परमेश्वर के जो अग्नि में रथ हैं उन पर विश्वास करना चाहते हैं? I tell you this, church, कलीसिया, हम आपसे ये कहते हैं, when Jesus stood up and spoke those words, जब यीशु मसीह खड़े होकर वो वचन कहे and he shouted it out and said, "Peace, be still." और जब उन्होंने चिल्लाकर कहा, शांत हो जा, थम जा, I'm telling you what he was quoting from scripture. मैं आपको बताता हूँ वो पवित्र शास्त्र में से क्या कह रहे थे। Psalms 46 and verse 10. भजन संहिता 46 10वां वचन, Be still. Be still, church. Be still, be still, be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. और भजन संहिता 46:10 कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कलीसिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। And the last verse that I'm going to read for you tonight is from John chapter 16 and verse 33. और आखिरी वचन हम आपके लिए आज के लिए पढ़ रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक 16वें अध्याय से, And this is what Jesus is saying. और ये यीशु मसीह कह रहे हैं, These things I've spoken unto you, that you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. John 16:33. और यूहन्ना 16:33 मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So these are the words of God. ये परमेश्वर के वचन हैं। The word for God to you today is to trust in His protection. और परमेश्वर का वचन आज आपके लिए ये है कि आप उसकी सुरक्षा में विश्वास रखें। But the word of God also for you today was what we began with right in the beginning. और परमेश्वर का ये भी वचन था जिससे हमने शुरुआत की थी आज का संदेश। Be sober और सचेत रहें and be vigilant. और ध्यान रहें। So don't be stupid. तो बेवकूफ़ी के काम ना करें। When you are going out during this time of the coronavirus, be sober, be vigilant, don't be stupid, put on a mask. और जब आप बाहर जा रहे हैं इस कोरोना वायरस के समय में, तो बेवकूफ़ी के काम मत करें, मास्क पहनकर जाइए। When the government is telling us that we need to keep distance from people, it's not because the government wants to separate us from people, it's because the government wants to have you being safe. और जब हमारी सरकार हमें कहती है कि आप एक दूसरे में थोड़ा सामाजिक दूरी बनाए रखें, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो अलग अलग करना चाहते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ये चीज़ कह रहे हैं। So the Bible here is telling us the same word that we read in 1 Peter chapter 5 and verse 8. Be sober, man. Be vigilant. तो यही पवित्र शास्त्र जो हमने पहला पत्रस 5:8 में पढ़ा कि सचेत रहें, सतर्क रहें। You know somebody is having symptoms. अगर आपको पता है किसी में कोई गुण है किसी बीमारी के, आजा आजा गले लग जा। तो आप जाके गले लग जाते हैं। अरे हाई फाइव, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ऐसे हाथों को मिलाते हैं। Somebody is telling you, I'm not well. Be a little far away from me. कोई आपको कहता है कि मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, दूर रहो मुझसे। अरे आजा, कोई प्रॉब्लम तो आप बोलते आजा आजा, कोई फर्क नहीं पड़ता। That is you being stupid. तो ये आप बेवकूफी के काम कर रहे हैं। That's why we began with the verse telling us, be sober and be vigilant. इसलिए हमने शुरुआत की थी आज के वचन की कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें। What is the opposite of sober? और सचेत का विपरीत शब्द क्या होता है? Drunkenness. और जिसे हम बोलेंगे कि किसी में लत में लगा हुआ, जिसे आपको ध्यान ना रहे। And what happens when you are drunk? और जब आप शराबीपन में पड़े जाते हैं तो क्या होता है? The nasha, right? या जब आप नशे में होते हैं तो क्या होता है? I'll tell you because I have been drunk, so I know what it feels like. तो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है, इसका मुझे अनुभव है। When you're drunk, जब आप नशे में होते हो, your senses are dull.
तो आपकी सोचने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। So there's being alert, तो एक है सतर्क होना and then there's being asleep. और एक है सो जाना। But when you're drunk, you're halfway. तो जब आप नशे में होते हैं तो आप बीच में कहीं डगमगा रहे होते हैं। So you are there physically, आप शारीरिक तौर पर तो वहां पर हैं, but you don't have control. लेकिन आपका कोई अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। The reason why people slur and they're like, the reason they talk like that is because they're trying to say a word, but their mind is so dull that they can't speak the words correctly. और नशे में जब कोई इंसान होता है वो ऐसा होता है कि चाहे वो कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन उनकी जबान लड़खड़ाती इसलिए है क्योंकि उनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं है। And so when the Bible is telling you to be sober, the Bible is telling you, don't behave dull. Don't behave hard of understanding that you don't realize what's going on. तो जब पवित्र शास्त्र आपको कहता है कि आप सतर्क रहें या सचेत रहें, तो वो आपको ये कह रहा है कि बेवकूफ़ी के कार्य ना करें, आपका दिमाग को नशे में ना रखें और ध्यान रखें। Follow the instructions. और जो आपको कहा गया है उसके पीछे चलें। Put on a mask. मास्क पहनें Keep that distancing. और वो सामाजिक दूरी बनाए रखें। And when you see that, or when you feel that you have symptoms, let your church know. और जब आपको लगता है कि आप में कुछ आपको तकलीफ है या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तबीयत में, तो आप कलीसिया को बताएं, Call your church कलीसिया को फोन करें, so the church can do some action and ensure that you are safe. ताकि कलीसिया आपके लिए कुछ कर सके, आपकी सेहत को बचा सके, So the church can pray for you. ताकि कलीसिया आपके लिए प्रार्थना कर सके। And church, I tell you, कलीसिया मैं आपसे कहता हूं, today in the face of danger, आज खतरे के मुंह के सामने it is important that we as Christians, that we as God's children, stop being people of unfaith. और ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, क्रिस्ती होने के नाते, कि हमें बेवकूफ़ी के काम नहीं करने हैं। There's a fine line between having faith and being stupid. और एक बहुत ही छोटी सी लकीर है कि बेवकूफ़ी के कार्य में और being stupid. Having faith and being stupid. और विश्वास और बेवकूफ़ी के कार्य में बहुत ही हल्की सी लकीर है। You know, Jesus was in the boat. यीशु मसीह नाव में थे, He was not out swimming in the water. वो पानी में तैर नहीं रहे थे, He was in the protection. वो सुरक्षा के अंदर थे He was within the protection. और उस सुरक्षा के अंदर थे। So when you are alert and when you are sober, जब आप सचेत और सतर्क रहते हैं, you can display your faith because you're inside protection. तो तब आप अपना विश्वास दिखा सकते हैं क्योंकि आप सुरक्षा के अंदर ही हैं। But when you're behaving the opposite of 1 Peter 5:8, and when you behave stupid, and when you behave like you have no sound sense of understanding or judgment, you're outside in the danger. और जब आप वो पहला पत्रस 5:8 के विपरीत कार्य करते हैं, बेवकूफ़ी के कार्य करते हैं, और जहां आपको होना चाहिए वहां पर आप नहीं हैं, तो वो आपका पूरा बेवकूफ़ी का कार्य दर्शाता है। Before we close, आज के अंत करने से पहले and before we pray for you, I've got all your prayer requests. और आपकी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आ चुके हैं, उससे पहले I have a beautiful example that God showed me. एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया। God explained to me the Rhema word, the explanation, the divine revelation of peace be still. और परमेश्वर ने पासवान को ये उदाहरण दिया और उन्हें बताया कि इस शब्द का क्या मतलब है। And God asked me a question and He said, when have you heard these words, don't move? और कब आपने ये चीजें सुनी है कि हिलो मत? What is be still? और एक शांत होना क्या होता है? Be still is another word of saying, don't move. और ये जो शांत होना है, ये उसका दूसरा विपरीत शब्द है कि रुक जा। Means don't move. हिलो मत, Don't move. हिलो मत। That snake is just before you. और वो सांप आपके सामने ही है। That snake is waiting to attack. और वो सांप रुका है कि आपके ऊपर हमला करे। If you are asleep, अगर आप सोए हुए हैं you wouldn't move. तो आप हिलोगे नहीं, That snake will not bite. तो शायद वो सांप आपको डसेगा नहीं। But because you're awake, क्योंकि आप जागे हुए हैं, because you're focusing on the advertisement of Satan, क्योंकि आपका ध्यान वो शैतान के विज्ञापन पर है, because you're watching all the danger क्योंकि आप सारे खतरे को देख पा रहे and हैं believing it,
और उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, your actions are frantic. तो आपके जो कार्य हैं बहुत ही हलचल करने वाले You're हैं। running around doing stupid things. तो आप बेवकूफी के कार्य इधर उधर भाग रहे हैं, You're yelling and running and crying in unfaith. तो आप अविश्वास में चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो Oh, I'm dying. कि मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। Your actions are now displaying your unfaith. तो आपके जो कार्य हैं वो दर्शा रहे हैं आपके अविश्वास को, The danger is before you. और खतरा आपके सामने है। And your movements, your frantic movements, तो माफ कीजिएगा, तो आपका हिलडुल जो है, your movements, your behavior तो आपका जो चाल चलन है सामने जो हिलने डुलने का, will make that snake to bite. तो वो हिलना डुलना जो है आपका, वो सांप को डसने को लगाएगा आपको। The dog is standing before you और वो कुत्ता आपके सामने खड़ा है and it's growling और वो घुर्रा रहा है आपकी and ओर, it's foaming at the mouth. और उसके मुंह से झाग निकल रही है। Your movement आप हिलेंगे will make that dog to bite. तो आप जैसे ही हिलेंगे वो कुत्ता आपको काटेगा। Jesus is telling you, यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, okay, you've done the mistake. हाँ आपने गलती की है, All right, you have believed in that advertisement. ठीक है, तुमने उस शैतान का विज्ञापन पर विश्वास कर लिया। Okay, now the danger is right before you. हाँ, वो अभी खतरा एकदम आपके सामने आ गया है। Don't move. यीशु मसीह कह रहे हैं, हिलो मत, Don't move. हिलो मत। That's what be still means. इसका ये मतलब है कि शांत हो जा का मतलब है, Don't move. हिलो मत। And now, at least now, allow God's power around you, the chariots of fire around you. Allow them to do their job. Don't move. और यीशु मसीह कह रहे हैं कि हिलो मत। अब तो परमेश्वर की सुरक्षा को आपकी जिंदगी में कार्य करने दो, वो अग्निमय रथों को आपकी जिंदगी में सुरक्षा लाने दो। अब तो मान जाओ, Enough of all of your unfaith. और आपका अविश्वास बहुत हो गया, Enough of all of your actions believing Satan. और आपके जो कार्य हैं कि शैतान के कामों में विश्वास रखना बहुत हो गया। Enough of all of your drunken behavior and your stupid behavior. और आपके नशे वाली बातें और ये बेवकूफी के कार्य बहुत हो गया, Running around like a fool. और एक बेवकूफ की जैसे इधर उधर भाग रहे हैं। Enough. बहुत हो गया, Stop now. रुक जाओ, Stop right now. रुक जाओ इसी समय, And allow God's power to work. और परमेश्वर की सामर्थ को आपकी जिंदगी में काम करने दो। The protection of God is all around you. परमेश्वर की सुरक्षा आपके चारों ओर है, It is more than the enemy, और शैतान के से बहुत ही ज्यादा है, bigger than the enemy, और शैतान के हर चीज से बड़ा है, and more powerful than the enemy. और ज्यादा ताकतवर है विरोधी के लिए। Trust in His protection. और उसकी सुरक्षा में विश्वास रखें, Don't move. Be still. और हिलिए मत, वहीं ठहरिए The victory is ours. कि हमारे पास विजय है, हमारी विजेता है। I give all glory to God सारी मान महिमा परमेश्वर की for हो, God's word spoken to us today. कि परमेश्वर ने जो से हमें जो वचन दिया। I'm praying first for Minu Hembram. हम प्रार्थना कर रहे हैं बहन मीनू हेम्ब्रम के लिए। I'm also praying for Reverend Arpan. हम रेवरेंड अर्पण के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। God, we pray for Minu and we pray for Reverend Arpan, and we ask you, O God, for your power and your blessing upon their lives. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बहन मीनू के लिए और रेवरेंड अर्पण के लिए कि आपकी ताकत और आपका आशीष उनकी जिंदगी में आए। And we speak God's power and protection by the power of the Holy Spirit in the name of Jesus now. परमेश्वर, आपकी सुरक्षा और आपकी ताकत उनकी जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा अभी आए। Both of their lives we declare God's protection and His peace. And God's telling you, children of God, just be still and allow Him to work. और परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की पूरी आशीष आपकी जिंदगी में अभी हम आपकी जिंदगी में लाते हैं। And church and all of those who are watching our program, we also want to lift up in prayer one of the members of our church, Church of the Living Water, Sister Manjula. और कलेशिया, जो कोई भी हमारा आज कार्यक्रम देख रहा है,
हम हमारी कलीसिया की सदस्य बहन मंजुला के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं And we want to give glory to God, and we want to thank God for saving her just as she was at the door of death. और हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहन मौत के मुंह से वहां से परमेश्वर ने उन्हें बचाया है And God answered our prayer for mercy. कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया, उसकी दया हमारी जिंदगी में आई। We asked for His mercy, परमेश्वर की दया हमने मांगी and He answered our prayer. और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। And because of His mercy, Sister Manjula is now safe. परमेश्वर की दया की वजह से बहन मंजुला आज सुरक्षित हैं। But we're still going to pray for His protection and His mercy. लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की दया और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। And I'm going to ask you to agree with me right now. और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ एक मत बनकर प्रार्थना करें। Lord our God, we as a church and all of those watching tonight on Rima Broadcasters, we right now agree, we agree as God's children, and we ask you, oh God, for your continued and your renewed mercy. Thank you, Lord. And we ask you, oh God, for your protection. We ask you for answers. We ask you for healing. We ask you for strength. And we ask you, oh God, that you protect our church and the family of Sister Manjula for unfaith. Protect us, oh God. Protect them all from unfaith. Protect them, oh God, from believing in Satan's advertisement. Yes. But open their eyes to see the power of your truth. Open their eyes to see the power of your protection. Protect them, O God. Protect them, O God, from evil words. Protect them, O God, from the words of unfaith sent and sowed by Satan. And open them up, O God, to your mercy and your faith. We thank you for your mercy. We thank you for your mercy, O God. We thank you for your mercy upon Sister Manjula and her family, and for all of your children right now who are in the face of adversity, who are being afflicted by the coronavirus, who are being afflicted by some form of attack of Satan. For all of these your children who are right now, because of unfaith, they are in the face of adversity. But we thank you for your word that you've spoken to us. We thank you for your word that you're asking us to be still and to know and to trust you. We thank you for warning us that the attack and the enemy is right before us. We thank you for your protection, and we thank you for your warning. And we believe and we receive your healing, your anointing, and your power. We receive it right now in Jesus' mighty name. And all of God's people watching with me, let's say amen, Amen. and amen. Glory be to God, church. सारी मान महिमा परमेश्वर की हो कलीसिया। We thank you for joining us on tonight's telecast. और आप सबका धन्यवाद, आप हमारी सभा में बने रहे। Don't forget to join us Monday nights at 9 p.m. as my mother, Pastor Reverend Lillian Isaac, will preach and pray and prophesy for you on Rima Broadcasters. और भूलिएगा नहीं, सोमवार रात को 9 बजे पासवान की माता श्री पासवान लिलियन आइजैक आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आपकी ज़िंदगी के लिए भविष्यवाणी करेंगी। तो सोमवार रात को 9 बजे रीमा ब्रॉडकास्टर्स के फेसबुक पेज पर। Next Wednesday, we'll be back again the same time, 9 p.m. India time, here on Rima Broadcasters. और अगले बुधवार फिर मिलेंगे रात को 9 बजे रीमा ब्रॉडकास्टर्स के फेसबुक पेज पर फिर से। And if you've been blessed and you want to watch more, join us Saturday night, 9 p.m. on the Church of the Living Waters Facebook page. तो अगर आपको परमेश्वर ने आशीष दिया है, तो आप हमारे और वचन सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन, तो शनिवार रात को 9 बजे चर्च ऑफ लिविंग वाटर्स के फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ फिर से बने। From our church headquarters studio here in St. Louis, Missouri in the United States, I am Pastor Dan Isaac. और मैं हूं एलन फर्नांडिस। And we leave you with God's blessing and anointing and His word of faith to be still. परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का वचन
कि आप शांत रहें और विश्वास रखें परमेश्वर की सुरक्षा में। This is an important word in these times. So share this everywhere. तो ये वचन बहुत ज़रूरी है इस समय के आज के हालात में। तो ये वचन जितना हो सके आप बांटें और बांटें। Glory be to God. God bless you. We will see you next time. सारी मान महिमा परमेश्वर की हो। अगली बार फिर मिलेंगे।